Welcome, friends, to our regular Thinking Thursday. And today we have a very interesting topic, which is on shadow work. You must be wondering what is shadow work. So, shadow work is going to give you a lot of information about the negative aspect of you and how it is interlinked and interrelated to you. So, Manju Jain is with us here. And she's a past life regression therapist. She's a family constellator. She does tarot reading, angel card reading, and I think a lot more. Manju is a very humble, lovely soul, and I always tell her that she's one of my favorites because um, she's such a soft person, and the best part of Manju is that she's willing to change, and that's something that's so beautiful in a person when I see. Manju is somebody who came for the training with me, and I saw the transformation that happened in those 7 days. From a very insecure, unsure kind of person, she became a very confident person. और मुझे याद है जब मंजू की बर्थडे थी, I was so touched of by the transformation that she did in 7 days. मुझे याद है मैंने अपने earrings उसको दिए थे as a gift because it's very rare that you see in 7 days somebody transforming from an ugly duckling to a swan. And I think Manju is just that. So she's really a lovely person. And shadow work is something that's, I think, dear to her. She's very good at it also. So I thought we should have Manju talk about shadow work today. So Manju, my dear, over to you. Better you need to unmute. Okay. Thank you, ma'am. Thank you very much for inviting me and making my dream true. जब भी कोई थर्सडे थिंकिंग पे आता था तो यही लगता था, यार एक दिन मुझे भी जाना है, एक दिन मुझे भी जाना है, काश ऐसा हो पाएगा। और आपने ये सपना सच कर दिया, रियली थैंक यू So मैम। sweet, Manju. I'm really, whatever I said, I really mean it. I've seen the kind of transformation that's happened in your life, in your kind of relationships, in your work, and I think that's so beautiful, Yeah, really. So please go I was a caterpillar and ahead. And you became a butterfly. beautiful butterfly. Lovely. Now, शकुंतला जी शेयर Yes, करें। yes, yes, हाँ yes. जी, शकुंतला जी PPT share करेंगे. And I want everybody to please mute yourself. We'll have to keep muting people, okay? First, bow down to Guru Trapti ma'am. I have done past life regression training. और ये मेरा बर्थडे वाला ही फोटो है जो इसमें मैंने लगाया है, जो मैम अभी कह रही थी केक कटा हुआ है। और टीए ट्रेनिंग आई आल्सो हैड फ्रॉम मैम एंड एएसआरटी आल्सो लास्ट ईयर. All I have done, and I want to touch. I am touching your feet, ma'am. Bless me first. Bless you, dear. Bless you. Thank you. Thank you. Next, Shakuntala ji. It's my journey from caterpillar to butterfly. First, I did past life regression, then inner child, family constellation, rebirth breathwork, radical awakening, TA, NLPFT, Heliola radiant relationship, and all. It's a long journey. I think 2017, I did first time past life regression. एंड उसके बाद फिर आपको पता ही है, जैसे जर्नी स्टार्ट होती है तो एक के बाद एक आप उस जर्नी में जाते हैं, तो वो जर्नी मैंने अब तक बड़ी एंजॉय की है। और अपना जैसे मैम ने कहा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो मैम ही बता सकती हैं कि पूरा हुआ है मेरा। बिल्कुल, जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे से मिले होंगे, शकुंतला जी भी मेरे को फर्स्ट टाइम उसी में मिली थी और मेरी एकदम फ्रेंड बन गई थी पहली बार में ही। 2017. नेक्स्ट, शेयरिंग इज केयरिंग, ये एक सेंटेंस मैंने फर्स्ट टाइम तृप्ति मैम के मुझ से ही सुना था। तो जो भी मेरी नॉलेज है जिससे मुझे फायदा हुआ है, आज मैं वही शेयर करने जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, एंड आपको सबसे पहले इंटेंशन सेट करनी है कि इस वर्कशॉप, इस टॉक से आप क्या चाहते हैं और क्या आपको मिला है।
तो सबसे पहले सब अपनी इंटेंशन लिखेंगे। क्या आपकी इंटेंशन है, व्हाट इज शैडो और हाउ टू इंटीग्रेट शैडो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। प्लीज राइट द इंटेंशन फर्स्ट। नेक्स्ट शैडो एंड होलनेस। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे व्हाट इज शैडो, तो आज हम इसी के बारे में टॉक करेंगे। व्हाट इज शैडो और इट्स रोल इन होलनेस एंड इन सेल्फ लव आल्सो। जब हम होल होते हैं तो फुल ऑफ सेल्फ लव होते हैं। और इन हाउ टू इंटीग्रेट दिस शैडो, बिकॉज इट इज वेरी टफ टू इंटीग्रेट आवर शैडो। नेक्स्ट, when you are born you are divine light full of self love। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल प्योर डिवाइन, आपने किसी बच्चे को देखा होगा, जब देखते हैं तो ऐसा दुनिया में कोई नहीं होगा जो उस बच्चे को देख के अंदर से कुछ ना होता हो, उसके प्यार से भर जाता है हमारा दिल। तो हम भी सब ऐसे ही होते हैं जब पैदा होते हैं, तो फुल ऑफ सेल्फ लव। हमें ये नहीं पता होता कब रोना है कब हंसना है, बस जो हमारा मन करता है हम वो करते हैं। नेक्स्ट, राइट 3 क्वालिटीज टू सी दिस पिक्चर। अब आप अपनी इस फोटो को देख के जो भी आपको लगता है 3 क्वालिटीज आपको क्या दिख रही है वो सब आप लिखेंगे। 3 क्वालिटीज। 3 क्वालिटीज लिखेंगे और अब हम एक छोटी सी मेडिटेशन भी करेंगे अपने इस डिवाइन सेल्फ से मिलने के लिए। ओके फ्रेंड्स, लेट्स रेडी। क्लोज योर आईज। All close your eyes. Relax your body. Breathe in and out. Your body is relaxing. As you breathe in, you are taking all the fresh energy of universe. And when you breathe out, you are giving away all the stress. You are totally relaxed. Imagine an elevator within you. Step into the elevator and go down 7 floors. You will see your beautiful garden. Notice the flowers and trees surrounding you. It is a beautiful day. Birds are singing. Notice the color of the sky. How comfortable and safe you feel in your garden. Take a moment. Find a quiet place to sit and create a comfortable meditation seat. Make sure you put on clothes that carries your body. Sit down and close your eyes. An aspect of yourself will come into your consciousness. This aspect will be you at your best. It will be the totality of who you are, filled with love and compassion. This aspect is your sacred self, your divine self. Invite this magnificent being to fully enter into your awareness. Visualize yourself manifesting your highest potential, feeling peaceful. Now ask your sacred self to sit down next to you.
Now embrace the sacred self and thank her for coming to see you, and vow to revisit him, her, and your garden often. Now open your eyes. Can anybody share did she, what are you seeing in your meditation? Garden. Can anybody share Garden. what you experienced? What was like your sacred self? वो तो कोई एंजल बीइंग पास में आके बैठ गई. अच्छा. A lot of emotion flowed, and Sumanji, a lot of a deep kind of sense of release was there. Of course, like how Shakuntala ji said that one could feel a definite angelic energy right next to you, and there was some kind of a cold feet, and of course, a lot of surging energy which got inside me. Okay, thank you. Shakuntala ji, next slide. Four, 5-year-old fairy light. Thank you. तो जब हम अपनी फैमिली में बड़े हो रहे होते हैं, व्हेन फैमिली कंडीशनिंग स्टार्ट, योर सेल्फ लव डिमिनिशेस. तो जब हम अपनी फैमिली में, जिस भी फैमिली में पैदा होते हैं, उसकी कंडीशनिंग हमें कितना इफेक्ट करती है, ये आप सबको ही पता होगा. तो हमारा अपने लिए सेल्फ लव कम होता चला जाता है. सपोज अगर किसी बच्चे को गुस्सा आ रहा है और उसे अलाउ नहीं किया जा रहा फैमिली में, तो क्या होता है, तो उसको सब मना कर देते, नहीं करना नहीं करना. तो उसको भी यही लगता है कि यार गुस्सा करना गंदी बात होती है, तो वो अपनी इस एस्पेक्ट को दबा लेता है. और फिर आगे क्या होता है? नेक्स्ट स्लाइड. Whenever you want to be your true self, you feel ashamed because nobody accept you in the family. जैसा मैंने बताया, जैसे ही किसी बच्चे को फिर अगेन गुस्सा आता है, तो उसे इतना गिल्टी फील होता है कि मम्मी, गुस्सा तो आ रहा है पर मम्मी की बातें डांट सुन के उसे गिल्टी फील हो जाता है, क्योंकि उसे पता है मम्मी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी और डांट पड़ेगी वो अलग. और जब वो गुड बॉय बन के रहेगा तभी उसे प्यार मिलेगा. तो इस तरह से हमारा सेल्फ लव कम होता चला जाता है अपने में. और फिर जो एंगर पर्सनैलिटी हमने डाउन कर दी है, छिपा ली है, वो फिर खत्म नहीं होती, वो हमारी बॉडी में रह जाती है और फिर वो दूसरे तरीके से रिफ्लेक्ट होती है. नेक्स्ट स्लाइड. व्हेन यू रिजेक्ट योर ट्रू इसका सेल्फ. ना फॉन्ट साइज बहुत बड़ा हो रखा है, तो स्लाइड ठीक से दिख नहीं रही है, सिर्फ 2-3 वर्ड्स बड़े बड़े दिख रहे हैं बस. कुछ ओके. कुछ कुछ हो गया है आई थिंक. फॉन्ट साइज बहुत बड़ा हो रखा लैपटॉप पे तो ठीक आ रहा है, मोबाइल पे हो सकता है. है. ओके, लेट्स सी देन. ओके. नाउ इट्स ओके, थैंक यू. ओके. When you reject your true self, you adopt a false self to survive in family. जैसा कि मैंने बताया कि जब आप अपने इस पार्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, तो आप एक फॉल्स सेल्फ अडॉप्ट कर लेते हैं. अगर आप एंग्री पर्सन है तो आप गुड बॉय बनने के चक्कर में तो आप एक स्माइलिंग फेस अडॉप्ट कर लेते हैं टू सर्वाइव इन फैमिली. नेक्स्ट स्लाइड. And those parts you rejected in childhood, they go on in your unconscious, become your shadow. एक्चुअली शैडो, यही इसको ही शैडो कहते हैं. जो पार्ट्स हमने रिजेक्ट कर दिए थे बचपन में, वे हमारे अनकॉन्शियस में चले जाते हैं और हमारी शैडो बन जाते हैं. उन्हीं को कार्ल युंग ने शैडो कहा है. नेक्स्ट.
बट अब आगे क्या होता है? भगवान ने तो आपको प्योर डिवाइन सेल्फ बना के भेजा था और आप आधी जिंदगी जी रहे होते हैं, तो यूनिवर्स वांट्स यू टू होल एंड कंप्लीट, शोज यू योर रिजेक्टेड पार्ट्स इन अदर पीपल सो यू कैन बी होल। अब उसके पास यही ऑप्शन बचता है कि वो आपको दिखाए, भैया ये तुम ही हो, ये तुम ही हो। बट हम उन लोगों को इतना जज करते हैं कि यार ये इतना गंदा है, ये है, वो है, तो फिर हम फिर से इनकम्प्लीट रह जाते हैं। तो जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि हमारी शैडो है और हमें इन्हें एक्सेप्ट करना है कंपैशन के साथ, तो ये गेम चलता रहता है होल लाइफ। नेक्स्ट। You judge people not to feel shame of childhood and you become incomplete again. जब भी आप किसी पर्सन को देखते हो और या जज करते हो, तो एक्चुअली में हो क्या रहा होता है, आपकी बॉडी में अनकॉन्शियसली शेम की और गिल्ट की फीलिंग ऑटोमेटिक आती है, पर आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे हो। तो बस आप जब उन्हें जज करते हो तो वो रिलीज देते हो और आपको शांति सी मिलती है जज करके। यू बिकम इनकम्प्लीट अगेन। नेक्स्ट। तो जो ये हमारे जो हम बनते हैं, एक्चुअली जो हमारे प्राइमरी सेल्फ है, जो आज की डेट में आप हो, वो आपके प्राइमरी सेल्फ हैं, जो आपने सरवाइव करने के लिए फैमिली में अडॉप्ट किए थे। तो ये सेल्फ हमने इसलिए बनाए थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसमें हमारी मैं आपको गोल्डन बुद्धा की स्टोरी सुनाती हूँ कि ये कैसे बनते हैं। एक बार 1957 में एक मॉनेस्ट्री शिफ्ट की जा रही थी। तो क्या होता है, मॉन्क के पास एक बहुत बड़ा मिट्टी का स्टैच्यू होता है बुद्धा का। तो वे उसको जैसे ही शिफ्ट कर रहे होते हैं तो उसमें से क्रैक दिखाई देता है। तो उन्हें लगता है क्या हो रहा है, तो वो उसको चिपिंग करते हैं, उसके हथौड़े से मिट्टी निकालते हैं। तो उसमें से उन्हें गोल्डन लाइट दिखाई देती है। तो फिर जब वो सारा हटाते हैं तो उसमें से गोल्डन बुद्धा निकल के आता है। तो वो सब देख के हैरान हो जाते हैं। फिर उन्हें बाद में पता चलता है कि बर्मीज आर्मी ने आक्रमण किया था, तो उससे छिपाने के लिए उन्होंने उसको मिट्टी से कवर कर दिया था, उसको सेव करने के लिए। तो यही हमारी स्टोरी है। हमारे अंदर का जो ट्रू सेल्फ है, उसको पेन से, शेम से बचाने के लिए हमने अपने ऊपर एक मिट्टी का मास्क लगा रखा है। वही हमारे प्राइमरी सेल्फ हैं। जो भी सोचते हैं कि हम गुड हैं, ये सब हमारे प्राइमरी सेल्फ हैं। तो अब हमें उनकी चिपिंग करके धीरे धीरे हम अपने गोल्डन बुद्धा को बाहर लाएंगे। दैट इज अवर ट्रू सेल्फ। नेक्स्ट। अब आप सब पेपर पे एक लिखेंगे, मेक ए लिस्ट ऑफ द पीपल यू एडमायर एंड मेक ए लिस्ट ऑफ 3 पीपल यू हेट। सबसे ज्यादा किसको आप जज करते हैं, सबसे ज्यादा किसको आप एडमायर करते हैं? एडमायर का भी हम बाद में लेंगे, एडमायर तो क्योंकि गुड क्वालिटीज वी आर हैविंग। 3 पीपल यू हेट एंड जज मोस्ट। एनीबडी कैन शेयर? शेयर क्या करें? 3 क्वालिटी, 3 जो आप जज करते हो पीपल पीपल को, वो 3। हाँ, वो तो नाम लिख लिए, वो थोड़ी बताएंगे। नाम नहीं, क्या चीज जज करते हो उनके अंदर? बिहेवियर। हाँ, बिहेवियर में क्या, जैसे कोई किसी को गुस्सा आता है, यस, कोई गुस्सा। सेल्फिश है। करेक्ट। और फॉल्ट फाइंडर। हाँ, फॉल्ट फाइंडर। अच्छा, फॉल्ट फाइंडर। फॉल्ट फाइंडर नेचर। हाँ। अच्छा, आपकी ये 3 है। हम्म। तो वो सबकी अलग अलग होंगी। आपकी है एंग्री, जजमेंटल, और एक तीसरा बताया आपने। फॉल्ट फाइंडर। हाँ, गॉसिप नेचर किसी ने लिखा है, गॉसिप करते हैं जो।
जजमेंटल, नॉट ट्रस्टिंग। तो आप अपनी 3 ये क्वालिटीज, निगेटिव क्वालिटीज लिखेंगे जो आप पसंद नहीं करते हैं लोगों में। नेक्स्ट स्लाइड। तो यही आपकी शेडो है, जो भी आपने लिखी है सबने, यही आपकी शेडो है जो आपने डिसोन कर दी थी चाइल्डहुड में। तो एक्चुअली कोई चीज हम डिसोन कर देते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें कंपैशन लाना बहुत जरूरी है। फर्स्ट की कंपैशन, दूसरा एक्नॉलेजमेंट, और तीसरा ओन कि ये चीज हमारी है, तभी हम उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। अभी तक तो आप ये कह रहे हो ना, ये मुझे पसंद नहीं है, ये किसी दूसरे की है। तो इसके बहुत सारे प्रोसेस हैं शैडो को ऑन करने के, उसमें मैंने एक दो आपके लिए निकाले हैं। तो ब्रेक डाउन एनी वर्ड, सपोज शकुंतला जी ने बोला जजमेंटल, है ना शकुंतला जी? हाँ, और फॉल्ट फाइंडर। जजमेंटल, फॉल्ट फाइंडर, आई थिंक सेम हाँ, सेम है सेम। ना, फॉल्ट फाइंडर। तो अब हम इसको व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, तो हम इनसे ना ये डिगिंग करेंगे इनकी, जब तक आपको एक वो वर्ड नहीं मिल जाता जिससे आप कनेक्ट फील करें। तो मैं आपसे पूछूं शकुंतला जी की, किस तरह का आदमी फॉल्ट फाइंडिंग करता है? जो अपने आप को परफेक्ट समझता है और ओके, दूसरों से परफेक्शन चाहता है। अच्छा। और किस तरह का आदमी परफेक्ट होता है? अपना काम ढंग से ही करता है, वही होता है परफेक्ट। अच्छा, तो परफेक्ट करता है, तो इसमें हमें break the language down until you get a word that you hate and give your emotional charge। तो मे बी कि बचपन में आपको आपकी फैमिली में आप परफेक्ट नहीं कर पाए थे, तो आपको कभी डांटा गया था उस चीज के लिए? यस, यस, डांटा गया था, यस, ट्रू। ट्रू। तो सब चीजें हमारी चाइल्डहुड से जुड़ी हैं, तो फिर जब भी आप किसी को ऐसे देखोगे करते हुए, तो आपकी बॉडी में इमोशनल चार्ज आएगा और आप उसे लाइक नहीं करोगे। तो इट इज ऑल अबाउट योर सेल्फ। राइट। तो एक तरह से दूसरा बंदा वो आप ही हो, उसकी जो क्वालिटी है, मतलब आपको अपना इमोशनल चार्ज खत्म करना है, तो आपको उसके लिए कंपैशन आ जाएगा और आप उसे ऑन करने लगोगे। तो आपने परफेक्शन छोड़ दिया था बचपन में? नहीं, नहीं, अब छोड़ा है। हाँ। अब जाके छोड़ा है। मैम से मिलने के बाद में तब थोड़ी छोड़ा था। अच्छा, अच्छा, ओके। चलिए नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, कैन यू एक्सप्लेन अगेन द प्रीवियस वन? एक बार और मंटू। उसको एक्सप्लेन, दूसरा एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, हाँ, तो कैन यू टेक फैमिली एग्जांपल? आप अपना बताइए, आपने क्या लिखे हैं हरलीन? हेलो। आपने क्या क्या लिखे हैं जज पीपल? मैंने मंजू लिखा है कंट्रोलिंग, नेगेटिव माइंडसेट एंड सेल्फिश। सेल्फिश। तो चलिए सेल्फिश पे करते हैं कि ब्रेक डाउन एनी वर्ड। तो किस तरह का आदमी सेल्फिश होता है? मंजू, आई थिंक नेगेटिव माइंडसेट हैज द बिगेस्ट इमोशनल चार्ज फॉर मी। निगेटिव माइंडसेट। माइंडसेट, मतलब निगेटिव माइंडसेट मीन्स जो निगेटिव सोचता है सब चीजों के बारे में। हाँ, मतलब कोई सिचुएशन में कोई अगर पॉजिटिव नहीं हो पाता और नेगेटिव की तरफ ही ज्यादा सोचता है, तो वो दैट इज, मतलब फॉर दैट आई फील वेरी, मतलब annoyed and irritated. ओके, यू आर पॉजिटिव ऑल द टाइम? No, I'm not. I try to be. राइट टू बी, ओके। तो अब किस तरह का आदमी निगेटिव सोचता है, चलिए बताइए। किस तरह का? आई थिंक द वन हु वांट्स टू स्टे स्टक इन दैट काइंड ऑफ जोन, मतलब कि वो नेगेटिव उसमें ही रहना चाहता है, वो कंफर्ट जोन है उसका। अच्छा, किस तरह ऑफ व्हाट टाइप ऑफ पर्सन कंफर्ट जोन में रहना चाहता है? मे बी जो रिस्क नहीं लेना चाहता है ना, हम्म। मतलब ये भी हो अपने सकता है। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। हम्म।
जो रिस्क नहीं, किस तरह का फिर रिस्क नहीं लेना चाहता? चेंज टू, मतलब टू मेक डिसीजन, टू मेक थिंग चेंज, मतलब नो चेंज नो, करना। नहीं, आई थिंक जो कावर्ड होता है, डरपोक टाइप्स, मतलब रिस्क नहीं लेगा, आई थिंक सो। आई एम जस्ट एडिंग ऑन हर्लीन अलोंग विद यू। फॉर मी आई थिंक इट इज हरलीन मोर, के अलग होंगे, सरोज जी आपके अलग होंगे। for me I think it is more the person who's not able to make a decision for any change, यानी uncomfortable in टाइप्ड making होगा, टाइप्ड decision. होगा, एक टाइप्ड होगा वो किसी सिचुएशन के लिए कि बस ऐसे ही होनी चाहिए। Scared of doing things another way. न्यू थिंग्स मे बी। Hmm. तो किस तरह I का think आदमी न्यू थिंग्स करने से डरता है? जो जिसको जज करा जाएगा for trying something different, for doing something different, not following the defined way, or तो आपको लगता है कि बचपन में आप ऐसे ही थे? hmm, हम्म। hmm. Yes, yes. आपको Scared to take own decisions, and that's why staying in the same situation even though it is negative. या तो एवरीथिंग इज अबाउट आवर सेल्फ। मतलब अगर आप अपना डिग करेंगे तो वहां से आप पाएंगे कि आपका बचपन का कनेक्शन उससे है, वो आपका ही एक पार्ट है। जो वो क्वालिटी सामने वाला दिखा रहा है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि यूनिवर्स वांट टू शो दीज क्वालिटीज अनदर पर्सन आल्सो, दूसरे आदमी में आपको वो दिखाएगा। तो जब आप कहीं जाके ये फील करेंगे ना कि मेरा ये, तो आप में ओनिंग आएगी कि ये मेरा ही है यार, किसी ये आदमी अलग नहीं है। तो जहां आपके अंदर ओनिंग आ गई, फिर कंपैशन आ जाएगा। कंपैशन के बाद आप उसको एटलीस्ट अनप्लग होना बंद कर दोगे। और एक क्वालिटी और होती है, जब अनप्लग नहीं होगे आप, तो यूनिवर्स क्या करेगा, वो लोग आपके स्फेयर से चले जाएंगे आसपास से, और आपको इफेक्ट होना भी बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। When we love and respect our shadow self, we are able to stop projecting onto others. तो जैसे अभी हरलीन जी, शकुंतला जी से बात हुई, तो हम क्या कर रहे थे अभी? हम अभी यही कर रहे थे। तो हम प्रोजेक्टिंग कर रहे थे अपनी शैडो को उनके ऊपर। पर जब हम उन्हें ओनिंग और रेस्पेक्ट लव करने लगेंगे, तो हम प्रोजेक्टिंग भी बंद कर देंगे, फिर हम उनसे अनप्लग होना भी बंद कर देंगे। नेक्स्ट। प्रोसेस एक और है शैडो को ऑन करने के लिए। 3 क्वेश्चन पूछने हैं आपको। हैव आई डन दिस इन द पास्ट? जो कि जैसे पता चला कि हरलीन जी, शकुंतला जी से, कि वो सब कर चुके हैं। एम आई डूइंग दिस? हम कहीं ना कहीं 5%, 10% ये सब जरूर कर रहे होते हैं, वो अनकॉन्शियसली होता है, हमें नहीं पता चलता। अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस एम आई कैपेबल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस ट्रेट? और ये सब पे लागू होती है कि अगर डिफरेंट सिचुएशन होगी तो इवन हम मर्डर भी कर देंगे। अगर किसी ऐसी सिचुएशन में वो हमारे बच्चे को कोई मार रहा होगा, तो हम सामने वाले का मर्डर तक कर सकते हैं। इज इट ट्रू? Yes. Yes. तो Yes. ये आपको डिगिंग करने के लिए है अपनी शैडो को। तो आपको लगेगा कि यार ये सामने वाला जो कर रहा है, कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। तो आपको लव एंड रिस्पेक्ट धीरे धीरे आएगी। इसमें टाइम लगता है, ये एक दिन का टाइम नहीं है, ये सालों लग जाते हैं इस चीज को करने में। ये एक जर्नी है होलनेस की तरफ, जो आपको धीरे 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 लेके जाएगी उस स्पेस में। नेक्स्ट स्लाइड। अब दीज निगेटिव ट्रेट्स हैज ए पॉजिटिव गिफ्ट फॉर यू। अब जब तक जिन चीजों को हम निगेटिव निगेटिव कह रहे हैं, उनके पास एक गिफ्ट भी है आपके पास देने के लिए। जब आपको लगेगा यार गिफ्ट मिल रहा है, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है, यार इतनी भी बुरी नहीं है। अनकंसीलिंग फर्स्ट स्टेप, एक्नॉलेज ब्रिंग्स इंटीग्रेशन। जब आप सामने वाले को दे एक्नॉलेज कर लेते हो कि हाँ ये मेरे अंदर भी है, चाहे 5% हो चाहे 10% हो, तो तभी आप शेडो को इंटीग्रेट कर पाते हो। और गिफ्ट
ये मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर कोई पर्सन एंग्री है तो एंगर इतना बुरा नहीं होता जितना हम सोचते हैं, क्योंकि इट टेल्स यू अबाउट योर नीड, इट सेव्स योर बाउंड्री। सपोज अगर आप अगली, आपकी वो है कि कोई अगली पर्सन आपको दिखता है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो इट गिव्स यू होलनेस। एंड नेक्स्ट स्लाइड। I have a question here. या Like when we are delayering that particular emotion, तो एक defense mechanism comes in. हमारा conscious mind बोलता है नहीं, how can we be this? You know, how can we have this quality? For example, अभी किसी ने लिखा, like I have a problem that I have a problem with clingy people. So how can I be clingy? You know, so that defense mechanism will shoot up. So नहीं, आपका क्या है श्रीजा, आपका क्या लिखा है आपने? आपने क्लिंगी लिखा है। clingy, हाँ तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि क्लिंगी टू द पर्सन, यू कैन बी क्लिंगी टू अदर थिंग्स आल्सो। हाँ maybe your emotions, you are clingy to your emotions, हम्म like that. You are clinging somewhere, हाँ. somewhere, huh? As a child, I used to. Yeah. Yes. Yes. ओके। तो एज ए चाइल्ड यू आर यूज टू, तो वो शुरू में जो हमने कहानी बताई है कि वो बचपन में ही हमने डिसोन कर दी थी, क्योंकि क्लिंगीनेस आपने डिसोन कर दी थी Right. और आप थे, हाँ. है ना? तो उसके साथ कोई आपका इमोशनल चार्ज जुड़ा हुआ है। Okay. तो अब आपको उस पार्ट को प्यार करना है, एक्सेप्ट करना है, जैसे इनर चाइल्ड का होता है प्रोसेस। Okay. बट कंपैशन कहाँ से आएगा? अभी तो आप सामने यूनिवर्स आपको दिखा रहा है क्लिंगी क्लिंगी, तो हम्म. आपको फिर डिलेयरिंग करनी है कि किस टाइप का आदमी क्लिंगी होता है। आप हम्म. बताइए। चिपकू लोग भी होते हैं यार, non-stop. They're after your life, you know. क्या? People who are very clingy, like you know, they keep at you. They नहीं, keep क्लिंगी calling क्यों and keep. होते हैं? क्लिंगी क्यों होते हैं फिर? हम्म. क्योंकि वो शायद, मुझे लगता है, अपने आप इसलिए क्या? सरवाइव ही कर पाते, लो लैक ऑफ सेल्फ लव में भी, Yeah. Lack of self-worth, lack of self-love. सेल्फ वर्थ। I mean, तो जब आप ये सोचोगे, आप फिर डिगिंग करोगे, तो आप अंदर कहीं ना कहीं पाओगे कि बचपन में मैं ऐसी थी, फिर आप चेंज हम्म. हुए। वो आपका प्राइमरी सेल्फ है जो अब आप हो। तो बेसिकली कितना भी डिफेंस मैकेनिज्म ऊपर आए, यू कीप क्वेश्चनिंग या योरसेल्फ टू गो या डाउन एंड डाउन एंड डाउन अंटिल यू ओन द या थिंग. ओके, ग्रेट, थैंक यू. ओके। Arlene, you want to ask? So, Manju, the question that came up to my mind is that after doing this shadow work for myself, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि that I get judged. अब कि आपने ये भी बोला कि पेरेंट्स से होती है वो वाली कंडीशनिंग. Now I'm able to connect it back to the incidents that lead me to behave in this way. एंड वो इंसिडेंट्स तो बंद नहीं होते हैं. तो दैट इंसिडेंट्स व्हेन दे हैपन अगेन, लाइक आई ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट व्हेन आई नो दैट मेरे को अपना वो वापस अपना दैट चाइल्डहुड सेल्फ पे जाना है. एंड सो आई एम जस्ट लाइक इफ देर इज अ वे टू हैंडल दैट, गोइंग बैक टू दैट, मतलब वो फैमिली कंडीशनिंग को हमें कैसे रिवर्स करना है या उस चीज. वही सब प्रोसेस हैं अलग अलग टाइप के। तो इसमें इतने, मतलब 1 घंटे की वर्कशॉप में जनरली हम इतना नहीं कर सकते, इतने प्रोसेस, इतना सबकी अलग अलग कंडीशनिंग है, तो इसके लिए मैंने थोड़े थोड़े डाले हैं। तो मे बी आपको कोई इमोशनल चार्ज है, आप हर्ट हो, तो उस हर्ट पार्ट से आपको बात करनी है, उसको ऑन करना है, उसको कंपैशन देना है। तो आप कह रहे हो ना बार बार सिचुएशंस आती है, तो इसका मतलब अगेन बार बार आप हर्ट हो रहे हो, तो आप उसे डिसोन करते ही रहोगे जब तक आप उसे ऑन नहीं करोगे। मतलब आपको कंपैशन आना चाहिए, आपको डिलेयरिंग करके कंपैशन आना चाहिए। ठीक है. ओके. ओके, गॉट इट. और उसमें अभी और प्रोसेस भी है, देखते हैं। देखिए गिफ्ट क्या है, अब मैंने अपने लिए लिखा है
सपोज मैं लेजी हूँ, ये मैंने अपने हिसाब अपना ही लिखा है, इफ आई एम लेजी तो क्या गिफ्ट है इसके। तो आई एम एबल टू अटेंड 10 आवर वर्कशॉप इजीली, तो ये मेरे को इसका गिफ्ट मिला है लेजी होने का। तो वो सबके गिफ्ट अलग अलग होंगे, तो सबको अपने डिक करने हैं गिफ्ट, कि जो भी आपको लगता है मैं ये हूँ या ये हूँ, तो इसके गिफ्ट्स क्या क्या हैं। अगर सपोज श्रीजा ने बोला है क्लिंगी होने के क्या गिफ्ट हैं, ये भी कुछ हो सकता है, क्लिंगी होने के भी कोई गिफ्ट हो सकते हैं, तो वो श्रीजा ही खोजेगी कि बचपन में क्या होता था। अगर बच्चा क्लिंगी होता है, मे बी पीपल गिव्स मोर लव टू हर। तो More अगर attention, more अगर और attention. टेंशन, टेंशन लव सेम वर्ड आई थिंक। Yeah. और अगर अगर हम स्लो हैं काम, परफेक्शन है, परफेक्शन के कारण स्लो है काम करने में, तो इसका क्या गिफ्ट है? नहीं, परफेक्शन इज ए गुड क्वालिटी, उसका निगेटिव स्लो है ना, स्लो है आप, तो क्या गिफ्ट है उसका स्लो का। तो वो आप सोचिए, अगर आप स्लो थे बचपन में तो आपको क्या फायदा होता था उसका। शकुंतला जी, ज्यादा काम नहीं देंगे लोग Seriously, इतना वही टाइम वही लगाएंगे। कहेंगे ये तो धीरे धीरे करता, खुद ही कर लो। और काम ज्यादा अच्छे से होगा अगर हम आराम से करेंगे, धीरे धीरे। वो भी है, तो सबके वो अलग अलग है, वो सबका प्रोस्पेक्टिव अलग ही होगा। Shakuntala ji, don't try to be too perfectionist. When because वो कितने भी आप परफेक्टली काम करने की कोशिश करेंगे, फिर भी आपको लगेगा कहीं तो कुछ रह गया है. So don't try to be too perfectionist. और परफेक्शनिस्ट भी मैंने कहीं पढ़ा है कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी डोंट ट्राई टू बी मोर देन ह्यूमन and make mistakes and accept your mistakes. वाह, वाह मंजू, छा गए आज। अब इतना पढ़ लिया है तो क्या करें अब। गुड। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया, कंपैशन इज द की टू ऑन योर शेडो। तो अपने जब आप चाइल्ड को डिग करेंगे, चाइल्ड इनर चाइल्ड पाएंगे, तो कंपैशन तो क्रिएट हो ही जाएगा कि यार ये मैं ही हूँ सामने वाला, उसकी जो क्वालिटी शो कर रहा है ये मेरी ही है। जब आपको मेरी वाला आ जाएगा ना, तो कंपैशन आएगा आपको, और फिर जब आप ओन कर पाएंगे, व्हेन यू ओपन योर हार्ट टू योरसेल्फ, यू कैन ओपन टू अदर्स। नेक्स्ट, एक और प्रोसेस है टू ओन ए क्वालिटी। इमेजिन इन फ्रंट ऑफ यू ए लीडर, ए हीरो, जो भी आपका फेवरेट है, या तृप्ति मैम, जो भी आप बुला सकते हैं उन्हें अपनी इमेजिनेशन में, और उस निगेटिव क्वालिटी के बारे में कुछ अच्छा बोलने के लिए बोलेंगे। तो सब अपने मन में सोचेंगे, चलिए क्लोज योर आईज, सब अपना अपना करेंगे और फिर शेयर करेंगे किसके में क्या आया एक आध। तो क्लोज योर आईज, रिलैक्स, रिलैक्स योर बॉडी, ब्रीथ इन आउट। अब आप एक सीढ़ी के ऊपर खड़े हैं और नीचे आएंगे धीरे धीरे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब अपने सामने अपने किसी हीरो को बुलाएंगे, हीरोइन, हीरो, माइथोलॉजी, गॉड, और एक क्वालिटी जो आप ओन नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको बहुत ही बुरी लग रही है, जज कर रहे हैं। अब उससे पूछेंगे कि इसके बारे में कुछ अच्छा बताओ जिससे मैं इसे ऑन कर सकूं। अब सब बोलने देंगे अपने हीरो को क्या कह रहा है। 1 मिनट।
When it is finished, open your eyes. Can anybody share? हाँ, परफेक्शन के लिए बोला कि छोड़ो परफेक्शन, ऐश करो। तो आशा जी ने उससे पहले ही बोल दिया। या मेरे दिमाग में भी आया था, ऐश करो, क्या चक्कर में पड़ रहे हो और फालतू क्या। के। मजे करो लाइफ में। Anybody else? Shija? Yeah, I got a very big message from ma'am. She was there. So she told me, you're complete and they're complete. And just value each other, but don't try to fit in or let them fit in. Try them to fit in. So no clinginess, actually. Everybody is complete in themselves. वाह, बहुत Yeah. शानदार मैसेज। Maybe I would also like to add in, I also channeled ma'am only. And to me, she said, trust the inner self. You're on a perfect journey. And you don't have to prove it to the world. And you don't have to prove it to anybody but to your own higher self that you're worthy and you shall be able to get it. Yeah, thank you very much. Next slide. तो जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, मैम को बुला के अपना उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें चैनल कर लो और फिर खुश हो जाओ। गुड गुड आइडिया। गुड आइडिया। तो हमारी कुछ पॉजिटिव शैडो भी होती हैं। When you are not living up to your potential, you project your positive traits onto people. जब भी आप किसी को देखते हो कि आपका कोई भी हीरो या उसके लिए बहुत ज्यादा एडमायर करते हो, वो क्वालिटीज भी आपके अंदर होती हैं, बस आपने वो भी डिसऑन कर रखी हैं। यू आर प्रोजेक्टिंग योर ट्रेट्स ऑन टू पीपल। एक्चुअली यू आर लिविंग योर लाइफ विद हाफ पोटेंशियल, एंड व्हेन यू इंटीग्रेट योर शैडो, यू आर इन फुल पोटेंशियल। You can be both. You can be sometime ugly, you can be beautiful, like that. And your journey is now return to wholeness. Next story, roar of awakening. ये हमारी जो जर्नी है, रोर ऑफ अवेकनिंग है। इसके बारे में एक स्टोरी है। एक टाइग्रेस जो है, एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है जंगल में। तो जन्म देने के बाद वो मर जाती है। तो क्या होता है, एक गोट का हर्ड आता है वहां पे और फिर उसको लेके चला जाता है। तो अब वो बच्चा उन्हीं गोट के साथ ही पल रहा है, बड़ा हो रहा है। तो वो उनकी तरह ही मिमियाने लगता है, मैं वो सब वही चीजें सीख लेता है। तो एक दिन जंगल में एक शेर आता है, फिर टाइगर आता है। तो वो देखता है यार, तो सारे गोट भाग जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यार ये तो टाइगर है। पर टाइगर के बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि मैं गोट हूँ। उसके अंदर तो टाइगर का खून होता है, तो वो वहीं बैठा रह जाता है। तो जो टाइगर होता है वो सोचता है यार इसे क्या हो गया, ये गोट की तरह कर रहा है, मिमिया रहा है, ये कर रहा है। उसे बड़ा गुस्सा आता है कि यार तूने तो हमारा नाम बदनाम कर दिया है। तो वो उसको गर्दन से पकड़ के वो पानी में लेके जाता है कि देख रिफ्लेक्शन को, पहचान कि तू और मैं एक ही हैं। पर वो तो बेचारा इतना कंडीशनड हो चुका होता है, वो पहचान ही नहीं पाता कि ये मेरा कोई है। तो फिर वो उसे बड़ा गुस्सा आता है टाइगर को। फिर उसे वो ले जाके जो मरी हुई गोट होती हैं उसका रॉ फ्लैश उसे खिलाता है। तो वो उसको उल्टी कर देता है, उसने कभी खाया नहीं होता, वो वेजिटेरियन होता है। तो फिर वो दोबारा, अब उसे और गुस्सा आ जाता है टाइगर कि आज तो मैं इसे पहचान दिला के ही रहूंगा। तो वो उसको खिलाता रहता है। फिर जैसे ही टाइगर का बच्चा पहली बार रो फ्लैश खाता है और उसका खून चखता है, तो उसके अंदर का टाइगर जिंदा हो जाता है। फिर दैट इज रोर ऑफ अवेकनिंग, और वो दोनों जंगल में भाग जाते हैं। तो ये सिंबॉलिक स्टोरी क्या बताती है हमारे बारे में, कि हम भी गोट, हमारा जो ट्रू सेल्फ, हम पैदा हुए थे लेकिन हम गोट की तरह पले बड़े हो रहे हैं सोसाइटी में, फैमिली कंडीशनिंग में। फिर एक दिन ऐसा आता है कि हमें अपना ट्रू सेल्फ मिलता है। ये हीलिंग थेरेपीज, ये सब से हमें अपना ट्रू सेल्फ मिलता है, और फिर दैट इज आवर रोर ऑफ अवेकनिंग एक्चुअली। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल।
लिख रही है, what blood do we need to test? Good one. Next. Acknowledging your shadow, you become whole and complete and you live your life with full potential. जब आप अपनी शैडो को ओन नहीं करते हो तो यू हैव नो फ्रीडम। कोई आपके पास फ्रीडम नहीं है। जैसे शकुंतला जी का है कि उसने परफेक्शन करना है तो बस वो हर समय परफेक्शन परफेक्शन ही करती रहेंगी, तो उनकी लाइफ में फ्रीडम नहीं है। तो जब वो शैडो को ऑन कर लेंगी तो वो फुल पोटेंशियल में आ जाएंगी। वो ऐसी भी हो सकती हैं, ऐसी भी हो सकती हैं, समटाइम दिस समटाइम दिस। वी आर फ्री टू चूज नाउ। कभी उनको आराम करना है तो स्लो हो जाएंगी, कभी काम करना है तो फास्ट कर लेंगी, लाइक दैट। नेक्स्ट। चलिए, तो एक मेडिटेशन करेंगे। इसके और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, अगर कोई करना चाहता है तो मैसेज कर सकता है पर्सनल विंडो पे, जब तक हम ऑन ना कर लें उसके डिफरेंट डिफरेंट। और हेल एंड सिड्रा ने भी बहुत अच्छा काम किया है इसमें। एम्ब्रेसिंग अवर सेल्फ एक बुक है, आप वो पढ़ सकते हैं, वॉइस डायलॉग कर सकते हैं। आप अपनी किसी क्वालिटी, बैड क्वालिटी को अपने सामने बिठा लिए और एम्पटी चेयर करिए उसके साथ। वो आपको बताएगी कि फिर क्यों वो आपकी लाइफ में डिसोन हो गई थी। फिर कंपैशन से आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक मेडिटेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग योर शैडो। क्लोज योर आईज। ब्रीथ इन एंड आउट। Return to your sacred garden. Create a safe environment to do your exercise. Take your internal elevator down 7 floors. Go into your garden. Admire its beauty. When you feel the presence of your surrounding, find your meditation seat. When you are comfortable and feel safe, bring the image of your sacred self. Go in and call the dark, shadowy aspect of yourself. Ask your sacred self to come and embrace your shadow self. Allow this all-loving, beautiful part of you to hold this scary, dark, unloved part in her arms. Imagine sending love, kindness, and forgiveness to your dark side. Tell this dark aspect of yourself that it is safe. You are going to spend time understanding and learning to love it. Take your time. When you are ready, open your eyes. Anybody can share? Yeah. Can you see? Hello? Yeah, can you hear Yeah, me? Suruchi is sharing. Yeah. So, because when I was born, आवाज कम आ रही है। okay, so I just so the day when I was born,
So I was completely away from my masculine part. And in lot many meditation, I used to ask, where is my masculine part? So the entire masculine body just integrated. I'm really grateful to you. Really. Thank you. Thank you so much. Really. Anybody? थैंक यू मंजू जी, आपने बहुत सिंपल तरीके से बहुत ही खूबसूरत से एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली ऐसे हमने काफी सुना है, इवन एस्ट्रोलॉजी में भी इसको क्या काल पुरुष का वो एक ब्लैक साइड है। शकुंतला जी, मुझे याद नहीं आ रहा है, एस्ट्रोलॉजी में भी है ना वो, उसको क्या कहते हैं, पाप पुरुष। एक एक गुड बीइंग है तो एक पाप पुरुष करके भी है। तो वो ही चीज को आपने एक्सप्लेन किया, बट बहुत सिंपल तरीके से बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच। मुझे मेरा पर्सनल चीजें मुझे पूछनी थी। मुझे कोई आई आई पर्सनली फील आई एम नॉट अ वेरी कॉम्पिटिटिव पर्सन, and anybody competing, and I see that jealousiness in that person, that starts bothering me, and especially it happens in your friends and all. तो वो क्या ऐसे हुआ होगा कि आई डिसलाइक एनीबडी, आई डोंट लाइक, आई फील यू बी परफेक्ट। आप जो चीज में आप उतरते हो आप उसमें 100% दो, यू बी नंबर वन। बट वाई यू वांट टू कॉम्पीट, बिकॉज यू आर डूइंग, अभी आप ये फील्ड में है, तो मैं भी जस्ट आई वांट टू कॉपी यू बिकॉज एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग यू। तो आई हैव फ्यू, आई हैव कम अक्रॉस, नॉट फ्यू, समबडी, तो दैट वो मुझे अच्छा फीलिंग नहीं देता है। तो ये मेरा क्या नेगेटिव साइड होगा कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है? So you don't like jealousy? I don't like jealousy. Definitely, I don't like jealousy, and I don't like that competitiveness. Somebody competing with you, I don't like that. मुझे ऐसे लगता है आप बेस्ट हो तो कंपटीशन क्यों? यू बी द बेस्ट, उसमें कंपटीशन क्यों? तो ये फीलिंग मुझे बॉदर करती है। तो तो ये आपने वो किया हीरो वाला जो कराया था, हाँ, मैंने किया। उसमें क्या बोला उन्होंने? उसमें मुझे ऐसे कुछ चीजें सीखनी है, तो उन्होंने कहा कि आप यू गिव मोर टाइम टू योरसेल्फ, डिसिप्लिन लाओ, ज्यादा प्रैक्टिस करो। सो इट वाज समथिंग व्हाट आई वांट टू लर्न। तो मुझे वो मैसेज आया, जो दो टीचर्स है जिनसे मुझे सीखना है, तो मैंने उनको सामने लाया, एंड आई सेड, सो दे सेड हैव मोर डिसिप्लिन इन योर लाइफ। तो मुझे ये पार्ट मेरी समझ नहीं आई कि मुझे ये चीज क्यों अच्छी नहीं लगती है। एक्चुअली मैं आपसे पूछूं इसमें कि किस तरह का आदमी जजमेंटल होता है? जिसको शायद नॉलेज ना हो, मतलब खुद में पूरी नॉलेज ना हो, जिसको शायद वो इंसान, अगर इंसान अभी जैसे तृप्ति मैम, वो काफी नॉलेजेबल है तो वो नहीं जजमेंटल होगी किसी के बारे में। जो इंसान को कम जानकारी है वो जजमेंटल होता है। तो बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट आप थे ऐसे बचपन में? बचपन की ऐसे कुछ याद नहीं है मुझे, बट कोई ना कोई इमोशनल चार्ज जुड़ा है आपके इससे बचपन में? या तो आप बहुत होशियार थे, आपको देख के लोग आपको जज करते थे, क्या थे आप? होशियार थे या थोड़ा ठीक थे? मैं टिमिड थी, मैं एक्सप्रेसिव नहीं थी। ओके। मैं नॉलेजेबल थी, होशियार थी, बट मैं एक्सप्रेसिव नहीं थी। वो आज भी मेरे में है। अभी टीटी में काफी मतलब लोगों को जानने लगी हूँ, तो आई बिकम वोकल, बट अदरवाइज मैं टिमिड हूँ, मेरा नेचर टिमिड है। लेकिन आज तो नहीं लग रहे टिम, आज तो बहुत अच्छा बोल रहे हो। हाँ, आपको देख के तो आशा जी, आप टिमिड थे? थे। थे, आज से पहले थे। हाँ, हाँ, थी या करेजियस भी हो, अब आप करेजियस भी हो।
अच्छा, तो कोई आप लोग सब अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं सब? कर सकते क्या है? करो। कोई हम पूछना दूसरी है, है। कुछ पूछना है? जोहरा मर्चेंट जी। हाँ जी, एक मिनट। हाँ, मुझे समथिंग वेंट रॉन्ग। हाँ, कैन यू हियर मी? या ओके। मुझे एक चीज पूछनी थी। हम्म, ओके, नाउ दैट्स वन थिंग, वन प्रॉब्लम आई हैव, जो मुझे रियलाइज हो रही है, लेकिन मुझे नहीं मालूम इसके बारे में क्या करना। सो मे बी आई कैन हेल्प। मैं लोगों को आग्रह नहीं कर सकती। आई कैन नॉट बैडजर पीपल। मुझे मालूम है बहुत से सिचुएशंस हैं जहां पर आग्रह करना जरूरी होता है। अगर मैंने कोई काम दिया है किसी को, लाइक यू नो मेरे काम के सिलसिले में या समथिंग, एंड दे वर लाइक हाँ 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 हम कर देंगे, 3 दिन बाद। So I will not call them after 3 days. I'll wait for 4 days. I'll wait for 5 days. I'll wait for them to call me. And then if they don't call me, then I will just, uh, try to make do without it. आग्रह करना नहीं होता है मुझसे। मे बी रिसीविंग इज डिफिकल्ट फॉर यू। I don't know. आप घर में लोगों से कह के बात, मतलब काम नहीं करवाते कि ये कर घर में लगता है। देंगे? हाँ, नहीं, अब घर में मेरे बच्चे हैं तो कार, बट अदर देन दैट, बट इवन घर में भी, या अगर मैं किसी को बोलती हूँ कुछ करने को और अगर वो नहीं करते तो मैं कर देती आप करते हो ना खुद फिर। हूँ। तो आप इसको डिक कर सकते हैं कि किस तरह का आदमी, किस तरह का पर्सन होता है वो, जो कहना नहीं चाहता, वो हर्ट हर्ट नहीं होना चाहता एक्चुअली, अगर सामने वाले ने मना कर दिया तो। Yeah, that could be possible. तो आप हर्ट नहीं होना चाहते, तो मे भी बचपन में आपके इंसिडेंट ऐसे रहे होंगे, जब आप लोगों से, अपनी मम्मी वगैरह से अपनी बात कहते होंगे तो वो नहीं करते होंगे, तो आपने वो पैटर्न सीख लिया कि हर्ट से बचने के लिए मुझे अब स्ट्रांग रहना है। Yeah, that is true. दैट इज, या। तो आपको उसके लिए जो मैंने बताया, हमने बात की, कंपैशन क्रिएट करना पड़ेगा आपको, ओनिंग उसकी ना, कि ये मेरा ही पार्ट है और मुझे इसको कंपैशन देना ही देना है। तो वो हाँ, आप, बट लॉजिस्टिकली स्पीकिंग मुझे क्या अपने आप को फोर्स करना चाहिए लोगों को कांटेक्ट करना और आग्रह करने के लिए? नो नो नो, इट इज नॉट लाइक दैट। आपको अपना जो वो हार्ट का इशू है ना, वो उस पे वर्क करना है। इट इज नॉट अबाउट अदर्स, हम्म इट इज अबाउट यू, योर हार्ट। कि लोग मना कर, लोग, आपने ये नहीं किया हीरो वाला, उसमें कोई मैसेज आया आपको? नहीं, मैंने ट्राई किया, कुछ हुआ नहीं। तो अभी आप दोबारा करिएगा इसको, हो सकता है कोई मैसेज आए, या फिर आप एक बार बोलिए लेकिन विदाउट हर्ट। आपको उस हर्ट पार्ट पे आपको वो करना है वर्क, और फिर जब आप उस पे वर्क कर लेंगे तो लोग आपको जल्दी काम देना भी शुरू कर देंगे। दैट विल हैपन। हम्म आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म ओके। तो जो जो आप सबने अपनी जो 3 क्वालिटीज लिखी थी ना शुरू में बच्चे को देख के, तो स्क्रीन पे आप सबको एक साथ वे 3 क्वालिटी बोलनी है, एक दूसरे को देख के, वी आर ऑल दैट। क्या क्या लिखा है सब एक साथ बोलेंगे? डिवाइन, आप सब एक साथ बोलेंगे। क्या क्या लिखा था? Peace, Purity, love, beauty. innocence, ब्यूटीफुल, रिलैक्स। डिवाइन, रिलैक्स। Divine, relax, Learning, एंजल, चिल। एंजल, angelic, self-love, divine, Innocent, 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 gentle, love, Sweet, human, loving. beautiful, loving, beautiful, kind, caring, pretty, purity, spreading love, generous. smile, वर्ड लाइफ, love well. innocence. Yeah, वी आर dedicated. ऑल दैट। और अब मैं एक गाना चलाऊंगी, मेरा फेवरेट है, बस वो उसको सुन के थोड़ा करेंगे, फिर फिनिश कर देंगे। This healing day. Thank you for this day, Spirit. Thank you for this day. आवाज आ रही है? Thank you for this day, Spirit. Thank you for this day. This healing, this healing, this healing day. This healing, this healing, this healing. You can wave. Thank you for this day, Spirit. Thank you.
Thank you for this day, Spirit. Thank you for this day. This healing, this healing, this healing day. This healing, this healing. Thank you, Kiran. Thank you very much. Thank you all for participating. Thank you so Thank much, you to Manju ji. you. Such a Thank wonderful you all. Thank you reminder to to all you. of us. Thank you. Thank you Thank so you. much. Wonderful. We need Thank to you, give Manju Manju ji. a wonderful reaction. Thank Wonderful, you. wonderful. Super workshop. Super, super, Ending super. ending part बहुत सुंदर, Going to Manju. Yes. ending बहुत अच्छा किया। I think the best statement that Manju made is when you own your disowned selves, you experience freedom. This is Yes, such a powerful statement. We all want beautiful. to be free, right? But we are not free because we don't own the selves that we have disowned. And the disowned selves are all around us. They are our own selves, right? They are projected, like Manju very beautifully said, they're projected onto others. Positive ho, negative ho, jo bhi ho. And we live in a world which is projected by us. Yes. जो दुनिया है ना हमारी या आपकी, या ये हमने खुद बनाई है, जैसे हम कहते हैं. And we have projected our own disowned selves into the world. And then we say we are upset, we are disturbed, right? But we are disturbed because of the projected selves. तो जो हमारे आसपास में लोग हैं जो मुझे परेशान करते हैं, वो मेरे ही projected selves हैं. Moment Manju said that when you own these disowned selves, then you will be free. And she said everybody around you will start changing. Actually, they are not changing. वो तो वैसे ही है जैसे है. But you have owned it up. So I think बहुत ही beautifully Manju ने step by step, समझाया है. And some of the things that she's written on the slides are really profound. अगर हम वापस एक बार जस्ट वो स्लाइड्स देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि वो स्टेटमेंट में बहुत कुछ लिखा है. Absolutely. In a very simple way, but she's really put down some facts of life. Okay? तो जैसे शकुंतला ने कहा कि नो परफेक्शन. Well, perfection की वजह से शकुंतला has been an excellent computer teacher. Or she's an excellent astrology teacher. Or look at her slides that she makes. They are perfect. So perfection को हमें accept करना है कि yes, I am perfect, and because of perfection, the way I am today is because of that quality. अगर वो quality मुझे disown नहीं करनी, it's a beautiful quality. But when I'm upset with somebody else being imperfect, that is my own projected self. That imperfect self in me, because मुझे perfect बनना है 100%. तो जो 20-30% वाला imperfect self जो मेरा है, वो मैंने दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट कर लिया, because I don't want it. मुझे वो नहीं चाहिए. तो भैया कौन है यहाँ पे जो ये सेल्फ को ले सकता है अच्छी तरह से? ओके, दिस इज द पर्सन, अटैक. करेक्ट? तो इस तरह से हमें अपने क्वालिटीज को समझना है. लाइक मंजू ने कहा कि बचपन से ही, वेरी नाइसली शी सेड डिगिंग. आई लाइक दैट वर्ड, बिकॉज डिगिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना? तो when you start digging, then you have to put effort. So वो effort जब हम डालेंगे digging करते हुए, तब जाके वो चीजें बाहर निकलेगी. And you have to do it on your own. मंजू ने बहुत सुंदर कहा कि आपको खुद करना है बैठ के, ये आपको किसी और के साथ नहीं करना है, राइट? जब आप खुद अपने साथ करेंगे तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट. फिर वो डिफेंस मैकेनिज्म काम नहीं करेगा, है ना? तो अगर आप खुद अपने साथ बैठ के, श्रीजा इज एक्सीलेंट विद राइटिंग एंड जर्नलिंग. Shrija can take a workshop with us on journaling. I think that's an excellent thing, like digging जो मंजू ने कहा. we can do तो that. वो हम रोज अगर लिखते जाए, what has disturbed me today, like anger. मंजू ने कहा कि anger is a very good emotion. मंजू ने कहा, पर किसी ने पूछा नहीं मंजू को why, है ना? But anger is an excellent emotion, but it has to be used.
एट द राइट टाइम विद द राइट पर्सन। जैसे मैंने यूज किया था जब मैं बॉम्बे की ट्रेन, तो आपको पता ही है ना। तो एक बार मैं ट्रेन में घुस गई थी, 4-1 की फास्ट ट्रेन, ओके, विरार की फास्ट ट्रेन। जो बॉम्बे के लोग हैं वो समझते हैं। तो विरार की फास्ट ट्रेन में घुसो तो आपको आइदर दे विल किल यू or they will throw you out of the train. Okay, because they will say why have you got in the Virar fast जब आपको अंधेरी में उतरना है। तो आपके पास अंधेरी स्लो ट्रेन है, जो आप विरार में क्यों आए फिर। ओके, सो वन डे आई रिमेम्बर बारिश थी, और बिकॉज मुझे जल्दी जाना था तो मैं विरार फास्ट में घुस गई। ठीक है, और घुस गई मैं। अब वो विरार की जो लेडीज है उनकी एक क्वालिटी है ना, दे टॉक लाउडली, दे आर शाउट, दे आर रूड। तो मेरा मेरा स्टेशन आ गया। अब बारिश थी, उनके पास छाते थे, मेरे पास छाता था पर मैंने अंदर डाल दिया था। ठीक है, उन छातों से उन्होंने जो मुझे मारा। ओके, अब अगर मैं एंगर नहीं शो करती तो मैं अंधेरी पे उतर ही नहीं सकती थी। आई कैन नॉट गेट डाउन बिकॉज दे हेल्ड मी, लाइक व्हाई डिड यू गेट इन द ट्रेन। फिर मैंने मारा, ये मारा, ये मारा, और 2-3-5 गाली दी, एंड आई गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। ओके, सो anger is a useful emotion, but it has to be used appropriately, right? So कोई भी इमोशन बुरा नहीं है। Maybe I had anger, right? I worked with it, and then now I utilize it when I need to use it. So I've owned up that anger. Ma, there was one emotion which is commonly discussed between a lot of us. One was Shakuntala ji also said, and I also said, but Manju did not emphasized on that, was a fault finder. तो It's मंजू like this is fault Hanji. So fault finder, which I wanted to ask because I also had anger and fault finder as a very prominent jealousy, anger and fault finder as a very prominent emotion in me. So हाँ, I just thought that fault finder is something which if she could just highlight that a little bit. मंजू कुछ बताओ fault finder। ओके, आप फॉल्ट फाइंडर हो या आपको पसंद नहीं है लोग? I find faults. I find really for a lot of faults in others, Manjuji, which is really wrong. It's तो like given a chance, I would just now after meeting Ma, I've come down a lot from 100% to I have come down to let's say 90%, but 10% abhi bhi mere mein there is something which goes in my head, which just first reaction is I would like to see the negative of a person. ओके, तो फाइंड fault finder is judgmental. Maybe we can say judgmental. You are judgmental for others. No, Manjuji, I'm not judgmental for others. I never judge people. Okay. I mean, I never judge people. So तो then जज how पर how ये are you finding faults? finding fault. Ma, for example, Ma, is like I'm very I'm unable to I'm unable to change my staff. Is for example, I'm giving you a very trivial example that there are people who can actually easily overcome in a section of home helps. Right, so they don't mind that their home help, वो कैसा भी काम करके चली जाए, it is okay for them. वो काम कर गई, वो खाना बना गई, but मेरे जैसा person, I mean, my first thing is that the minute I finish my sessions or I go in my kitchen, I need to everything to be so spick and span that अगर वो मेरी एक maid, जो मेरी particular maid जिसको मैंने train कर दिया है, और वो छोड़ के चली जाए, आई एम मोस्ट अनसेटल्ड बिकॉज मुझे नए वाले में इतने फॉल्ट नजर आ जाते हैं, और मतलब कि मैं एडजस्ट ही नहीं कर पाती हूँ. I think fault finder and perfection is the same. Maybe Manju ji, it can be the same because I'm also a perfectionist. या सेम. तो आपको इसको डिक करना है कि किस तरह का आदमी परफेक्शनिस्ट होता है, बताइए. The one who's emotional, sensitive, and the one who doesn't like to be humiliated. The one doesn't like to be humiliated. The one doesn't like to be challenged. So it's you have to become perfectionist because you do not want that the public appearance जो है आपका इतना अच्छा होना चाहिए
that you're so conscious about your public appearance कि मतलब मेरे बारे में कोई गलत नहीं बोल सकता, that kind of a thing. Okay. So you feel humiliated when people will judge you. Okay. Manju ji, people, I mean, I to feel humiliated even if somebody doesn't reply to me on my normal conversations, और अगर कोई सामने बैठा है तो मुझे तो बुरा लगने लग जाता है कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तो why is this person not showing me any kind of reactions? It's like that, and I have worked a lot on myself on this कि अब मैंने लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है. It's like I just don't, if somebody doesn't reply to my messages, I simply say, okay, never mind. I just delete. So I've just stopped everything in my life. Yes, yes, Shrija, you're right. I'm a very sensitive inner child. Very, Sensitive. very sensitive inner Yeah. child. Yes. तो एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे अब ये चीजें हो रही हैं, आप हर्ट होने से बचने के लिए कर रहे हो ये सब। तो जो वो हर्ट पार्ट आपका इनर चाइल्ड का है ना, जो बचपन में बहुत हर्ट हुआ है, लोगों ने आपके साथ किया है अननोइंगली, तो उस हर्ट पार्ट के साथ आपको वर्क करना है। Okay. Thank you उसके so लिए much. This is wonderful. Yeah. उसके लिए कंपैशन आना चाहिए आपको। अभी आप उसे डिनाई कर रहे हो। Mm, You okay. can feel your emotion in meditation with hurt self child and accept that with compassion. मंजू Okay. जी, Yeah, मंजू जी, प्रिया है। clear. जी, मेरा एक अभी सबकी बात सुनने के बाद में मुझे एक चीज समझ में आई कि मेरा एक बहुत जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, मैं बहुत साफ और सच बोल देती हूँ। और ये बात मुझे समझ में नहीं आता। एक तरफ तो कहते हैं, बचपन से सुना है कि आप सच बोलो, फिर लोग सच क्यों नहीं सुनते? मतलब उनको ये क्यों नहीं सिखाया जाता है सच सुनो? अब मुझे ये समझ में नहीं आता, इस चक्कर में लोग मुझसे बुरा भी मान जाते हैं। अब जो ए है उसको मैं ए ही तो बोलूंगी, अब मैं उसको आ भी बोलूंगी तो मैं कैसे बोलूं? तो मतलब आ बोल लूंगी, लेकिन वो आ को फिर वो आ समझने लग जाते हैं, तो उसका क्या उपाय है? एक्चुअली वही है माई कि प्रॉब्लम है सच बोलना। आप बचपन से ही ऐसे होंगे ना, आप सच हाँ, बोलते थे बचपन से। हाँ, तो बचपन माँ से ने ही यही सिखाया था। तो बचपन से ही आपको डांट पड़ती होगी, जिससे आपका सच लाइक नहीं होता होगा। मतलब इसलिए डांट पड़ जाती थी कि मैं मेरी एक बड़ी गंदी आदत है कि मैं रात को अगर सो गई हूँ या किसी भी टाइम पे मैं सो गई हूँ, और मेरी माँ ये करती थी, मेरे से सब पूछ लेती थी सोते सोते में, और मैं सब कुछ सच बता देती थी। तो फिर डांट। लोगों को डांट तो पड़ेगी ही, मतलब जिन्होंने कुछ करा है तो अब मुझे मतलब अब मुझे लगता है मेरे एक मेरे क्लाइंट, उनका कुछ केस था। अब मैंने उनको ये साफ बोल दिया कि अगर आप ऐसा कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो अदरवाइज आपको फिर वो उसको लंबे टाइम तक आपको डिफिकल्टी रहेगी। अब वो कहते हैं कि इस बात को आपने इतना सच क्यों बोल दिया? अब भाई जो सच, अब मेरे को एक्चुअली थोड़ा, आपकी प्रॉब्लम है कि आपको झूठ बोलना भी सीखना है। मुझे झूठ बोल यस, इट्स ट्रू, यू आर बोथ। Can I say something? हम्म, ये जो कह रहे हैं ना, इनफैक्ट मुझे भी सच बोलना पसंद है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई झूठ बोलता है। फ्यू डेज, आई मीन लॉन्ग बैक, मुझे भी अगर आप पूछोगे कि कौन सी मूवी थी, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, इंग्लिश मूवी थी बहुत टाइम पहले। वो मूवी ये था कि वो सिटी में रहने वाले सारे लोग सच बोलते हैं, सिर्फ सच बोलते हैं। तो वो मूवी की बिगिनिंग ही ऐसी होती है कि कोई आके जैसे काइंड ऑफ कुरियर गाय कम्स ऑन द डोर कुछ डिलीवर करने के लिए, एंड द बॉय सिटिंग इनसाइड एंड ही वाज मास्टरबेटिंग। तो वो बाहर आता है तो द गाय स्क्रीमिंग कि कितना देर लगाया दरवाजा खोलने के लिए। तो ये कहता है सॉरी आई वाज मास्टरबेटिंग। तो आप सच इतने भी नहीं बोल सकते, कभी कभी कुछ फिल्ट्रेशन की भी जरूरत होती है।
तो आप और मेरे जैसे लोगों को सच बोलना अच्छी बात है, बट जहाँ कभी कभी कुछ फिल्ट्रेशन की भी, अभी उसको कुरियर गाय को ये सब बताने की जरूरत नहीं थी, बट बिकॉज द होल विलेज स्पीक्स ओनली द ट्रूथ, एंड इवन द कुरियर गाय इज लाइक पूरी पूरी वो पूरी गांव ही सच बोलता है, तो वो भी कुछ ऐसे ये नहीं समझता है कि इसने कुछ बुरा बोला, पर हम वो दुनिया में नहीं रहते, तो इतना सच हम नहीं बोल सकते। वन थिंग इज दिस कि जैसे मैं सच बोलती हूँ, मुझे लगता है कि सच बोलने से मैं फ्री रहती हूँ अपने, मतलब मेरे को कोई दूसरी चीज सोचनी नहीं पड़ती, दूसरी चीज उसका बात नहीं रखनी पड़ती दिमाग के अंदर, तो मेरा ये एकदम सही रहता है। अदरवाइज मैं सोचूंगी ना, अच्छा मैंने उसको तब ये कहा था, तब मैंने उसको वो कहा था, वो सब Yeah, नहीं है। it तब is मैं ये not कर true. Priya, it is not true that we have not lied. It is not possible. बचपन से अब तक हमने कई छोटे छोटे झूठ बोले हैं, चाहे वो वो टीचर को हो, लेकिन चाहे दोस्त को हो, चाहे किसी को भी हो. It is not possible that a human being has only said the truth. छोटे छोटे झूठ कई बार हम बोलते हैं just to please somebody also. कोई कोई ये कहता है कि am I looking good? You think कि यार ये तो अच्छी नहीं लग रही, but फिर भी चलो कोई बात नहीं, let me say something nice to her. Correct? ऐसा नहीं है that we have not spoken a lie, but these we don't consider as lies. तो हम झूठ मानते नहीं है. Okay? But it is not possible that we have not said a lie. जैसे कि हम लेट है, we'll say कि यार I'm just reaching, but I'm not reaching. I'll हम take सारे you half an hour युधिष्ठिर to नहीं reach. है, Correct? हम वेरी ट्रू। युधिष्ठिर नहीं है, युधिष्ठिर को भी बोलना पड़ा था। हाँ, तो ये और सब पॉसिबल उसमें नहीं है. So first, what Manju said is absolutely on the point that अगर आप इतने ज्यादा emphasize कर रहे सच पे, तो थोड़ा झूठ बोलना स्टार्ट करिए. मैम, इस पे ना मुझे एक पुराना श्लोक है, ये हाँ जो अभी याचना ने भी लिखा था चैट में, हाँ, ये एक रहा. संस्कृत का श्लोक है, आप ध्यान से सुनिए और फिर मैं इसका मीनिंग भी समझा दूंगी। It's something like सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम प्रियम च नान्यतरम एष धर्म सनातन। सच beautiful. बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य ना बोलो। सत्य मुझे आधा सत्यम आता था बुर्यात। शकुंतला, इसलिए मैं लिख नहीं पाई। आपने बिल्कुल सही बैंग ऑन पकड़ लिया, आधा ही आता था मुझे। हाँ हाँ, तो सही पकड़ा आपने। कुछ 6 क्लास में रटे थे, कुछ लोग आज भी याद है, नहीं भूलती हाँ, मैं। मेरे फादर तो बहुत बोलते थे ये। सच बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य कभी मत बोलो। आपने राइट। जो सत्य बोला वो अप्रिय सत्य था। प्रियम च नान्यतरम एष धर्म सनातन है, हमारा सनातन धर्म ये कहता है प्रिय और सत्य बोलो, बाकी एंड दैट इज चुप नॉट रहो प्लीजिंग, ना। दैट इज नॉट प्लीजिंग अदर्स, इट और इज नॉट कई बार प्लीजिंग Even अदर्स। Master कई Chalk बार also आप says चुप that रहो ना। choose kindness over cleverness. Choose Yes, kindness yes. over cleverness. Yeah. कम बोलो, कई बार कम बोलो, या जो भी है। और हम अपने ऊपर लेने की बजाय भगवान को बोलो, भगवान मुझे गाइड करो हाउ टू। राइट राइट, Correct. Yes. बिल्कुल। Yeah, So डोंट sometimes टेक द it is डूअरशिप। very it's hurtful. okay to lie. It's okay to not be perfect. It's okay to get angry. It's okay. It's all right. Now, don't put so much of pressure on yourself. I mean, who are you trying to become? आप क्या बनना चाहते हो? आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है ये सब करने से, है ना? बी ह्यूमन. इट्स वेरी Yes. डिफिकल्ट टू बी ह्यूमन. Even Jesus was crucified. Yes. Even he didn't get the perfect world. Yeah. So Yeah, that actually. Shrija, that crucifixion is symbolic. That it's okay, है ना? Even God can be crucified, है ना? A messenger of God can also be crucified because people are wanting something that you are not. Similarly, you are wanting people to be who they are not. अब ये कैसे हो सकता है? It's not वो एक possible. स्लाइड वो एक स्लाइड थी मंजू की, बहुत अच्छी। एक छोटा बच्चा एकदम कोट पैंट पहन के ऐसे हाँ. बात कर रहा है जैसे कोई बड़ा पर्सन है। Relative truth, exactly. Yeah, Yes. everything is relative truth है. इतना प्रेशर मत डालिए. Please make mistakes, fall down, है ना? Wear a left shoe on your right and right shoe on your left and walk.
मे बी इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। एक लाल, आजकल तो मैंने देखा यंगस्टर्स एक पैर में रेड जूता पहनते, एक में येलो जूता पहनते। आई मीन आई लव इट। वी ब्रेकिंग दीज nonsensical methods of trying to be Ma'am, one of matching. my students came and he हाँ, wore, he's a boy who was wearing nails and हाँ, paint. हाँ. So I, being from the generation of the millennials, I asked him, "Are you gay?" Like, why you? He said, "I am straight and I love nail paints." Yeah, I said, I love it, so I'm doing it. so I realized that I also have to update हाँ, myself. हाँ. तो ठीक है ना, इट्स ऑल राइट, राइट। सबसे सुंदर बच्चे होते हैं वो हमेशा सच बोलते हैं अपने पेरेंट्स को लेके। स्कूल में आज वन बॉय केम टू मीट मी, फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला बच्चा था। वो कुछ टीचर ने कहा कि नो ही इज नॉट पेइंग अटेंशन, ये वो एंड ऑल दैट। तो ही केम टू माय कैबिन। तो मैंने कहा क्या हुआ बच्चे, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो पढ़ाई में? क्या करूं, मैं इतना लेट सोया था, मेरे मम्मी पापा झगड़ा कर रहे थे रात को। बच्चे ने बोल दिया ठीक है। तो मैंने कहा हाँ झगड़ा तो होता होगा रात को। बोले हाँ रात को ही क्यों करते हैं, जब मुझे पता है उनको कि मुझे कल सुबह स्कूल जाना है। he told everything that he had to say. I said चलो अभी सब कुछ बोल दिया ना, अब जाके फोकस, अब मैं कर पाऊंगा। then he went. फर्स्ट स्टैंडर्ड, हार्डली 6 year old चाइल्ड, राइट। तो बच्चे तो सच बोलते हैं, पर जैसे हम बड़े होते हैं ना, सोशल कंडीशनिंग, दैट स्लाइड इज ऑल्सो देयर। सोशल कंडीशनिंग बहुत बड़ी चीज है, एंड वी आर ऑल कंडीशनड। अब हमें सोशल कंडीशन से बाहर निकलना है। तो बेटा थोड़ा बहुत झूठ बोल रहे प्रिया। हाँ ठीक है, मैं आप बोल दिया करूँ, बना बना के बोल लूंगी, हाँ प्यार नहीं प्यार यार, से। आज ही अपने पति को बोल दे। कौन सा हम लोग को झूठ, तो अयोध्या ले जाना। कौन सा झूठ बोलने वाली है, बता दे हमको। मैं ये बोलने वाली हूँ कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। सी, तो सच है, ट्रस्ट मी, ये झूठ है। इट विल वर्क इन योर फेवर। देखो जो देखो, झूठ तू बोल रही है बट तेरे फेवर में शायद वो काम कर सकता है। यस, यही तो सीखना है मुझे। बस तो देखा, शकुंतला ने कहा, प्रिया, प्रिय शब्द बोल दो। प्रिय ऐसे करके अच्छा सा बोल देना, तुम तो वैसे भी हिंदी में हाँ, कुछ माहिर हो। अच्छा सा, फिर मैं आपको बताऊंगी भी स्टोरी बना के पूरी। हाँ स्टोरी बनाकर सुंदर, तेरे तो योर हिंदी इज फैंटास्टिक है ना, और सुंदर सुंदर लिखती भी है। तो ऐसे कर, सुंदर सी पोएट्री लिख दे 4 लाइन की, वो बोल दे उनको, फ्लैट हो जाएंगे। इतना भाव नहीं दे रही मैं। देखा देखा, ये देखो। अब देखो, अब ये परफेक्ट है नहीं है। थैंक गॉड, थैंक गॉड प्रिया इज नाउ शोइंग हर इम्परफेक्ट साइड। मंजू की वर्कशॉप काम कर गई। काम कर गई, हम्म, काम काम कर कर गई। गई। ये काम वंडरफुल। कर गई है, सच्ची में बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। और कोई जरूरत नहीं है बहुत परफेक्ट होने की। मैंने अपने आप को बहुत सोच के रखा कि नहीं, आई एम अ परफेक्ट बहू, आई एम अ परफेक्ट बेटी, आई एम परफेक्ट दिस, परफेक्ट। नो, सॉरी, आई वेरी एम गुड। नॉट। हाँ सी, अब एट जो मैं लास्ट यू हूँ, आर ओनिंग योरसेल्फ। जो मैं हूँ, नाउ यू एक्सेप्ट मी लाइक द वे आई एम। हाँ आई लव यू हाँ, like the way you love me, वंडरफुल। हाँ and I'm fine, I'm very much fine and happy. गुड। So if the opposite person gives you 60%, you also give 60%. और See, 1% दे you दीजिए, don't क्योंकि you, आई you एम। don't need to give 100%. सबको तुम दे 60% दो, मैं मिल दे रहा है, दूंगी। तो आप तो 100% मर रही है देने के लिए। बस तुम करो। तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें दे दूंगी। अभी तक बस, मैं पहले ऑलरेडी इतना ज्यादा दे चुकी हूँ। करेक्ट। अब 60-60, 40-50, 40-40, ये आपका रेशियो है। यस यस, चलो इसलिए परफेक्ट। बिल्कुल ठीक है, बैलेंस रहना एकदम ठीक है। और आई एम वेरी हैप्पी विद दिस ग्रुप, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद यू माँ। थैंक यू, एंड आई एम हैप्पी Everybody ऑल is ऑफ so यू। loving, ये and तुम्हारा गुड शैडो ना, लाइट शैडो, उसका पार्ट है। यू प्रोजेक्टेड इट। देखो और हमारे ग्रुप में ना बहुत सारे शैडो सेल्व्स आपके खुद के दिखेंगे। सो वी आर मतलब लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, है ना।
एंड आई एम बेयर फुटेड, मैं डांसिंग सोल हूँ तो हाँ मैं हूँ, हाँ, वेरी गुड, मैं बेयरफुट डांसिंग सोल हूँ करेक्ट। और मैं ऐसे ही हूँ। मेरे को सिंड्रेला के जूते मिलेंगे तो मैं वो भी पहनूंगी। हाँ मेरे को अगर लगेगा कि मुझे जाके कहीं पहाड़ पे जाके चिल्लाना है, मैं वो भी करूंगी। क्या मुझे बात, रात की आधी रात को लगेगा मुझे गाना गाना है तो मैं वो भी गाऊंगी। चल, परफेक्ट। Want to listen to me and I love you. Whether अगर someone नहीं has to listen or then not does also I not love matter. you. Bye. Chaliye, Manju, thank you so much. It was an awesome session, simple, effective, and to the point. बहुत ही Yes. अच्छा सेशन था आज का. Thank you so much, Manju, and thank you everybody for being Thank here you. today. Thank you. Bye. Thank you.